Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today I am going to take lecture Design of Structure with subject code 3150612 which offered in semester 5th Gujarat Technological University. Today deliver lecture topic WRC beam. Necessity of WRC beam. When applied moment on the beam is more than the moment of resistance of beam, the structure design has in three options. First, to increase the depth of beam. Second, to use higher grade of concrete to improve moment resistance. Third, to provide reinforcement in compression zone of a beam to increase moment resistance. What is WRC beam? When the applied moment on the beam is more than the moment resistance of single RC beam, the moment resistance of beam is increased by providing reinforcement in the compression zone. This types of beam is called WRC beam. WRC beam necessary in the following situation. When it is not possible to increase the depth of beam due to architecture purpose. To get more to get more headway in the room. When beam subjected to reversal of stress in case of earthquake, for precast beam, when the load are eccentric, when the beam is subjected to accidental or sudden lateral load, in case the continuous beam or slab, the selected support are generally designed as WRC beam. Difference between single RC beam and WRC beam. So first of all, in this tension zone AST provide सिंगली आरसी बीम में AST टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. और WRC बीम में टेंशन जोन AST प्रोवाइड while in compression zone ASC provide area of steel in tension, area of steel in compression. both जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं, उसे WRC बीम कहते हैं. और सिंगली आरसी बीम में ओनली टेंशन में ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम ए सिंगली आरसी बीम और ए WRC बीम का क्रॉस सेक्शन टेंशन में और कंप्रेशन जोन टेंशन जोन टॉप और बॉटम दोनों में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसे WRC बीम कहते हैं. ओनली बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसे सिंगली आरसी बीम कहते हैं, ठीक है. इन कंप्रेशन जोन 2 bar 10 mm anchor bar is provided. The anchor bar are not designed to carry any compression force. WRC beam. In the case zone area of steel in compression is provided which resist compressive force. सिंगली आरसी बीम में जो 2 बार 10 mm एंकर बार जो प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ बॉटम के टेंशन के बार को के लिए प्रोवाइड करते हैं, ना कि कंप्रेशन फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए. और WRC बीम में जो कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो कंप्रेसिव फोर्स रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. व्हेन
mu less than mu limit, beam is designed singly RC beam. When mu greater than mu limit, when beam designed a WRC beam. Moment resistance is less, moment resistance is more, ductility is less, ductility is more due to area of steel in compression zone, not suitable where are change in reversal stress, suitable where are change in reversal stress during earthquake. ठीक है, difference between single beam and WRC beam. Stress diagram for WRC beam, तो W क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, विड्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव विड्थ ऑफ डेप्थ, टॉप से लेकर बॉटम के जो रेनफोर्समेंट है सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, और यहाँ पे जो कवर है उसे इफेक्टिव कवर, यहाँ कंप्रेशन में जो कवर है उसे डी डैश कहते हैं, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी, यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसे एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ये कंप्रेशन जोन है, ये टेंशन जोन है, इज इक्वल टू सिंगली आरसी बीम ओनली बैलेंस सेक्शन, मतलब एएसटी जो प्रोवाइड किया है बॉटम में ऊपर से कंक्रीट है, और प्लस ऑक्सिलरी आरसी बीम एएसटी जो बॉटम में प्रोवाइड किया और टॉप में भी प्रोवाइड किया, ठीक है, और डी माइनस डी डैश सेक्शन मॉड्यूलस जेड, ठीक है, Z2 Z1 इज इक्वल टू डी माइनस 0.42 XU जो हमने सिंगली आरसी बीम में देखा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन स्ट्रेस डायग्राम जो सिंगली में था और डबली में ऑक्सिलरी, ठीक है, तो Z1 है वो है डी, ये टोटल डी माइनस, यहाँ से अपना इतना बात करेंगे ना, Z इतना है तो टोटल इफेक्टिव डेप्थ माइनस 0.42 XU, और डब्ल्यू में Z2 डी टोटल इफेक्टिव डेप्थ माइनस डी डैश, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डी है, तो डी माइनस डी डैश इज इक्वल टू सेक्शनल मॉड्यूलस Z2, ठीक है, V is equal to width of beam, D is equal to effective depth, overall depth capital D, XU depth of neutral axis, D dash effective cover to compression steel, AST small e effective cover to tension steel small e, AST1 area of tension reinforcement required for balance section, balance singly RC beam, AST2 area of additional tension reinforcement, AST is equal to AST1 plus AST2 area of total reinforcement in WRC beam, ASC area of compression reinforcement, FSC stress in compression reinforcement, FCC compression stress in concrete at the level of compression steel. Step for analysis of WRC beam. Only 3 steps are available in WRC beam analysis. Step number 1, find FSC, stress in compression reinforcement, stress in compression reinforcement, ठीक है, तो IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे स्ट्रेन का फॉर्मूला दे रखा है 0.0035 XU max minus D dash divided by XU max, तो XU max by D use and find XU max IS 456 2000 पेज नंबर 70 पे, जो आपको पता है, आगे भी आपने कर लिया है फाइंड, ठीक है, उसके बाद जो है स्ट्रेन की वैल्यू मिलेगी वो फ्रॉम ग्राफ 23A IS 456 पेज नंबर IS 456 2000 पेज नंबर 70 पे ग्राफ है, उसके ऊपर से हमें स्ट्रेन की वैल्यू मिलेगी और वहां से हम FSC फाइंड करेंगे, स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। स्टेप नंबर 2, फाइंड XU, न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना है, तो C1 C2 T1 T2, तो C1 है वो जो हमने फर्स्ट रेनफोर्समेंट में टुकमा फोर्स लिया था वो
0.36 FCK XU, C2 is equal to FSC into ASC, FSC stress in compression reinforcement, ASC area of steel in compression, T1 is equal to 0.87 FI AST1, T2 is equal to 0.87 FI AST, T1 plus T2 is equal to T. So total AST is equal to AST1 plus AST2, AST2 और AST1 total हो जाएगा AST. तो C1 plus C2 is equal to T1 plus T2 is equal to T. तो C1 plus C2 is equal to T. तो C1 की वैल्यू है यहाँ से हमने ले ली 0.36 FCK B into XU plus C2 की वैल्यू यहाँ से हमने ले ली FSC into ASC और T की वैल्यू यहाँ से 0.87 FI AST. Find cross section, front section. XU is equal to XU max balance section, XU less than XU max under reinforced section, XU greater than XU max over reinforced section. Step number 3rd. Find MU, moment resistance. So MU is equal to C1 Z1 plus C2 Z2. So Z1 is equal to section modulus Z, Z1 is equal to leave around Z1 is equal to D minus 0.42 XU or Z2 D minus D dash, effective depth minus effective cover of compression reinforcement. C1 is equal to 0.36 FCK B into XU, C2 is equal to FSC stress in compression steel, ASC area of steel in compression zone, MU is equal to 0.36 FCK B XU D minus 0.42 XU plus FSC into ASC D minus D dash. Analysis of WRC beam example problem. So example 1, a WA reinforced beam of 300 mm by 600 mm overall depth बोला है, is reinforced with 4 number 20 mm diameter of bar in compression zone, 6 number 20 mm bar in tension reinforcement, effective cover on both sides 50 mm, M25 grade of concrete, Fe415 grade of steel. Find moment resistance. ठीक है. So first of all, given data FCK 20 grade of concrete, characteristic strength of concrete, Fy characteristic strength of steel, Fe415 Newton per mm square, AST area of steel in tension 6 number 20 mm diameter, उसका हम एरिया निकालेंगे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी मतलब 20 डायमीटर ऑफ बार और 6 नंबर, तो टोटल एरिया हो गया 1885 mm स्क्वायर. ASC area of steel in compression 4 number 20 mm बार, तो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो ASC कंप्रेशन जोन में एरिया हो गया 1256 mm स्क्वायर और B 300 mm. इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ में से कवर बात करेंगे तो इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगा 550, ओवरऑल डेप्थ 600, कंप्रेशन कवर 50, सॉरी टेंशन रेनफोर्समेंट जो बॉटम में कवर है वो 50 है और टॉप में जो कंप्रेशन में कवर है वो 50 mm है, डी डैश और ई. ठीक है, ये गिवन डेटा है. अब स्टेप नंबर फर्स्ट, फाइंड एफएससी, मतलब बीम मैंने ड्रॉ कर दिया है फिगर, क्रॉस सेक्शन बी, ओवरऑल डेप्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है यहाँ तक, और बॉटम का कवर उसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, टॉप का कवर उसे हम डी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, और टॉप में रेनफोर्समेंट एएससी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन. स्टेप नंबर 1, फाइंड एफएससी. एफएससी फाइंड करने के लिए आपको IS 456 पेज नंबर 96 में फॉर्मूला दे रखा है 0.0035 XU max minus D dash डिवाइड बाय XU max.
यहाँ पे आपको मैं लिखना भूल गया हूँ, IS 456 पेज नंबर 96 पे ये फॉर्मूला दिया है आपको। तो 0 पॉइंट स्ट्रेन फाइंड करना है। 0.0035 ब्रैकेट एक्सू मैक्स बाय डी इज इक्वल टू 0.48, वो आपको पेज नंबर 70 से मिल जाएगा। एक्सू मैक्स इज इक्वल टू 0.48 इंटू 500, तो आपका हो गया 264। तो 0.0035 264 माइनस 50 टॉप का कवर है डी डैश डिवाइड बाय एक्सू मैक्स 264, तो आंसर हो गया तुम्हारा स्ट्रेन का 0.0028। अब हमें फाइंड करना है एफएससी फाइंड करने के लिए ये फिगर आपको दे रखा है IS 456 पेज नंबर 70, और हमारा स्ट्रेन की वैल्यू है 0.028 मतलब 0.03। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 0.003, तो यहाँ से हम जाएंगे टॉप पर, तो यहाँ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू है वो हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे आए, यहाँ से बॉटम, ठीक है। तो है 0.975 FY, तो FSC इज इक्वल टू 0.975 FY इज इक्वल टू 415, तो FSC इज इक्वल टू 404.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी IS 456 2000 पेज नंबर 70 फिगर 23A, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, फाइंड XU न्यूट्रल एक्सिस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T। C1 की वैल्यू है 0.36 FCK B इंटू XU प्लस FSC ASC इज इक्वल टू T की वैल्यू है 0.87 FY AST। तो 0.36 FCK है 20, B है 300, XU हमें फाइंड आउट करना है। FSC की वैल्यू है 404.62, ASC की वैल्यू है 1256 और 0.87 FY की वैल्यू है 415 और AST 1885। तो उसमें से हम XU फाइंड करेंगे, तो XU इज इक्वल टू 63.84 mm। तो XU मैक्स इज इक्वल टू 264, तो XU लेस देन XU मैक्स अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे मोमेंट रेजिस्टेंस। तो स्टेप नंबर 3, फाइंड MU। MU इज इक्वल टू C1 Z1 प्लस C2 Z2। C1 की वैल्यू है 0.36 FCK XU इंटू B और Z1 की वैल्यू है लीवर आर्म Z D माइनस 0.42 XU और C2 की वैल्यू है FSC इंटू ASC और लीवर आर्म Z2 की वैल्यू है D माइनस D डैश। तो 0.36 FCK 25 XU 63.84 B 300 D 550.42 XU की वैल्यू है 63.84, FSC की वैल्यू है 404.62 इंटू ASC की वैल्यू है 1256 D 550 माइनस 50। तो MU मोमेंट रेजिस्टेंस हमारा हो गया 344.03 किलो न्यूटन इंटू मीटर। Another example, a reinforced concrete beam of rectangular section 300 mm wide and 600 mm deep is reinforced with tension and compression. Reinforcement 4 number 25 mm टेंशन में दे रखा है एंड 4 number 60 mm कंप्रेशन में दे रखा है, ठीक है। एंड इफेक्टिव कवर बोथ साइड 50 mm respectively. Calculate factor moment axiom M20 grade and steel Fe415, ठीक है। तो फर्स्ट गिवन डेटा FCK 20, FY 415, B 300, D 550, ओवरऑल डेप्थ 600,
top cover 50, bottom cover 50, top cover 50, AST 4 number, area of steel in tension 4 number 25 mm, area हो गया 1963 mm square, ASC area of steel in compression zone, उसका एरिया हो गया 804 mm square, ये फिगर हो गए, क्रॉस सेक्शन ASC AST इफेक्टिव डेप्थ विड्थ ओवरऑल डेप्थ, टॉप रेनफोर्समेंट कवर है उसे हम डी डैश से डिनोट करेंगे और बॉटम का रेनफोर्समेंट जो कवर है उसे स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 फाइंड एफएससी। एफएससी फाइंड करने के लिए IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दे रखा है स्ट्रेन का। तो 0.035 ब्रैकेट एक्यू मैक्स माइनस डी डैश डिवाइड बाय एक्यू मैक्स। एक्यू मैक्स की वैल्यू हमें IS 456 पेज नंबर 70 पे से मिल जाएगी ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से 0.48, एक्यू मैक्स इज इक्वल टू 0.48 इंटू डी। तो एक्यू मैक्स की वैल्यू होगी 264 इज इक्वल टू 0.035 ब्रैकेट में 264 माइनस 50 डिवाइड बाय 264, स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.028। तो हम IS 456 पेज नंबर 70 पर से ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे से वैल्यू निकालेंगे जो पिछले एग्जांपल में हमने निकाली थी वही आएगी। ठीक है, तो FSC इज इक्वल टू 404.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 फाइंड XU। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T। C1 की वैल्यू है 036 F3K B इंटू XU प्लस ASC FSC इज इक्वल टू 087 FI AST। वैल्यू पुट करेंगे, XU की वैल्यू मिलेगी 177 mm, सॉरी हाँ 177 mm। तो XU max is equal to 0.48 264, XU less than XU max less than under and cross section XU is equal to 177.51 mm। जो यहाँ पे XU लेना है वो कौन सी वैल्यू लेना है, मिनिमम जो वैल्यू है वो पुट करना है, XU मैक्स की वैल्यू नहीं पुट करना है। ठीक है, इसलिए हमने एक क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट किया है कि कौन सा सेक्शन अंडर एंड क्रॉस सेक्शन है बैलेंस सेक्शन। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू XU और XU मैक्स में से जो मिनिमम वैल्यू है वो पुट करना है। यहाँ पे 036 FCK B इंटू XU Z1 D माइनस 0.42 XU मैक्स प्लस C2 FSC ASC D माइनस D डैश। तो 036 इंटू 20 इंटू 300 इंटू XU की वैल्यू जो है वो ये ले ली और XU मैक्स की वैल्यू है वो भी XU ही लेना है, जो छोटी वैल्यू है वो 550 माइनस 0.42 इंटू 177.51 प्लस 404.62 इंटू 804 ब्रैकेट में 550 माइनस 50। तो मोमेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारा 344.94